Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to GIB CIB Prep. Guys, in this particular session, we are going to practice MCQs and application-based question related to correspondent banking and NRI banking. Okay, very important unit. We already done with the concept classes. आशा करते हैं आप सभी ने देख लिया होगा, ठीक है? Now, in this particular session, we are going to practice around more than 40 questions, like different variety of question based on the different subtopic of this particular unit. And then after that, we will be practicing one session based on case studies as well as numericals, if any applicable, right? We are practicing our module A, which is all about the international banking. So exchange rate in forex business and LRS and other remittance facilities. These are the two units. So where we already done with the concept classes as well as the case studies. Now today we will be talking around the correspondent banking and NRI banking. Okay. So let's have a quick look about the course content, guys. So first one, what is correspondent banking? Accounts and other services, Nostro, Vostro and Loro accounts, which generally comes under the purview of correspondent banking. Electronic mode of transactions, SWIFT, CHIPS, CHAPS, RTGS. Then we have NRI banking, NRI accounts, rupee and foreign currency account, facilities to NRI, advances to NRI against NRD, non-resident deposits, housing loan to non-resident Indians. Okay, so almost all the subunits of this particular subtopic of this particular unit are very important here, especially these three type of accounts. One question you can expect based on the Swift or chips or chaps most of the time. Sometimes Fedwire also. NRI banking, different type of accounts, like we have NRE, NRO, FCNR, SNRR accounts, very important part. And sometimes the housing related loans or the basic provision in guidelines of RBI. So we are going to cover all these particular subtopics with the help of number of questions and application based MCQs. Okay, चलो तो बट इससे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसका देखना जरूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन. So we will start our today's discussion with very first question on your screen, guys. Question is generally related to NRI banking. So for NRI, we have four major accounts. NRE accounts, NRO account, FCNR, basically these three. Then SNRR account is something when NRI have some business interest in India, right? So now the question is, what is the major differences between NRO, non-resident ordinary, and NRE, that is non-resident external account? Okay, so we know the basic or the core of these two accounts. So NRE accounts is basically, let's take an example. Let's say there is person called Mr. X who is an NRI. So NRI आपका है ये, ठीक है. He is, let's say he is currently living in US and he earn in dollar. ठीक है, तो ये वहीं की local currency में आपका earn करा. ठीक है. So if we meant, let's say he is earning 30,000 USD per month. ठीक है, इसकी जो salary है वो something like this आपका. ठीक है. So if we open some account with Indian bank to deposit this particular money, तो दैट इज जनरली नोन एज एनआरई अकाउंट. ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपका एनआरई अकाउंट के नाम से हम लोग आपका जानते हैं. ठीक है. अनदर वन इज एनआरओ. लेट्स से दिस मिस्टर एक्स, इसकी इंडिया में आपका एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, एंड ही हैव गिवन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑन रेंट एंड ही इज गेटिंग 5 लाख रुपीज पर मंथ रेंट. आपका 5 लाख रुपए का इसको रेंट आ रहा है. ठीक है. सो टू मेंटेन दिस इज द काइंड ऑफ एनआरओ, इज काइंड ऑफ, ये आपका कहां पे मेंटेन करेगा? एनआरओ के अंदर. ठीक है. And it is kind of a like a saving account. It is similar to saving account. So what is the difference between these two? In case of NRE accounts, earning is generally belongs to the resident country जहां पे वो अभी रह रहा है यूएस के अंदर. In case of NRO accounts, it is income from India. जैसे उसका आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, वहां से रिटर्न है इंडिया के, या आपका प्रॉपर्टीज के अंदर है, या कोई रॉयल्टी फी कमीशन जो इंडिया से वो रिसीव करता जा रहा है. ठीक है. Now, the major distinction between these two accounts is NRE account is like it is taxable in US, it is taxable in India. ठीक है, टैक्स जो प्रोविजन आपके होंगे. दूसरा, in this particular case, this amount is
fully repatriable, ठीक है। तो दो तरीके से होते हैं, रिपेट्रिएशन एंड नॉन रिपेट्रिएशन। मींस ये जो इंडियन बैंक के साथ अकाउंट है एनआरई के थ्रू, ये चाहे तो पूरा पैसा वापस ले जा सकता है यूएस में, ठीक है। इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इट इज जनरली बेस्ड ऑन नॉन रिपेट्रिएशन। सो जहां पे अगर वो रेमिटेंसेस करेगा, सो फेमा की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा, ठीक। इन केस ऑफ एनआरई वी हैव सिमिलर वन अनदर अकाउंट दैट इज नोन एज एफसीएनआर अकाउंट और एसएनआरआर अकाउंट्स, उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ फर्स्ट, एनआरई अकाउंट कैन बी यूज as bank account to transfer foreign earnings, ठीक है, to India in Indian rupee. So it is maintained in rupee itself, ठीक है। Whereas NRO account can be used as saving account to manage the income earned in India by NRI in Indian rupee. So first statement is correct, ठीक है। Both the account generally get maintained in rupee itself, ठीक है। So ये आपका पहला statement 100% correct है, ठीक है। All deposit maintained, all deposit made to the NRE accounts, including interest earned, are fully repatriable, where NRO account have repatriation limit as per the FEMA. Second one is also correct here. All deposit in NRE account are free from income tax, where however the interest earned on NRO accounts is subject matter of TDS, ठीक है, tax deduction at source. That means option 3 is also correct here. तो आपका क्या होगा correct answer? So D will be right answer. All the three given statements are true about the NRE and NRO account. Understood? आपको बस इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करनी है, जिससे आपको मतलब यू विल गेट लाइक मोस्टली यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, जहां पे स्टेटमेंट ओरिएंटेड चीजें आपकी होती हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। So NRE account used as a bank account to transfer foreign earnings, ये हमने डिस्कस कर लिया. So we have discussed all the three pointers. Next one. Each one of the following are the silent feature of SNRR account except A को छोड़ के आपका, ठीक है। अब देखो SNRR account क्या होता है? This is an accounts, let's say in our case Mr. X, ठीक है, जो Mr. X आपके थे, ठीक है, he is an NRI, he is currently living in US, ठीक है, ये आपका अमेरिका में रह रहा है, ठीक है। सपोज दैट ही हैज सम बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। अब ये इंडिया में कोई आपका ही इज रनिंग सम XYZ लिमिटेड इन इंडिया। सो इसकी जो ट्रांजेक्शन है या इसमें जो फंडिंग्स आपकी हो रही है वो किसके थ्रू होगी? आपका एक्स कैन ट्रांसफर मनी इन आपका XYZ लिमिटेड थ्रू NRE एंड FCNR अकाउंट, ठीक है, FCNR अकाउंट, ठीक है, ये FD की तरह आपका होता है but in foreign currency. So he cannot remit money from the NRO account क्योंकि वो इंडिया की अर्निंग है। तो ये जो फॉरेन अर्निंग है उसको अगर वो XYZ में लगा रहा है और कहीं ना कहीं जो सारी ट्रांजेक्शन है वो फेयर तरीके से उनको मैनेज करने के लिए वी हैव वन अकाउंट दैट इज नोन एज SNRR अकाउंट एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज 7 years, ठीक है। और अगर NRI रेजिडेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो दैट अकाउंट विल आल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू रेजिडेंट, ठीक है, जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है। So the balance in SNRR account shall be eligible for repatriation. बिल्कुल सही है। क्यों सही है? Because यहाँ पे जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो जो बिजनेस इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कहां से हो रहा है? NRE और FCNR, इन दोनों ही केस में आपका अर्निंग कहां से है? उसकी फॉरेन की अर्निंग है, ठीक है। So this earning belong like in both the cases the earnings is generally from the current country of that particular one. Let's say in our case it is US, ठीक है। Transfer from any NRO account to SNRR account is not prohibited. This is wrong, ठीक है, ये गलत क्यों है? See, NRE and FCNR it is not permitted, prohibited, but in case of NRO account it is prohibited, ठीक है। So this is wrong. All transaction in SNRR account will be subject to payment of applicable taxes. So he is running a simple business in India. So on the transaction, they have to pay GST and other taxes also. Okay? SNRR account will be designated as resident rupee account on the account holders becoming resident. This is also true. So we have to find out the wrong statement. So which statement is wrong? So what will be our correct answer? B. Why B is wrong? क्योंकि हमने इसका जो पॉइंटर्स है वो आपका समझ लिया, ठीक है। So these are the features are very important, guys. This year also there was one question based on this particular subunit, ठीक है, or topic, ठीक है। So the balances in SNRR account shall be eligible for repatriation because the transfer they generally happen through the NRE and FCNR account, FCNR account and ये जो दोनों ही अकाउंट हैं इसमें अर्निंग कहां से होती है? फॉरेन से, ठीक है। Transfer from any NRO account is prohibited.
All transaction in SNRR account will subject to applicable taxes in India. SNRR account may be designated as resident rupee accounts as holder become the resident. Now the new point: opening SNRR account by Pakistani and Bangladeshi nationals and entities incorporated in Pakistan and Bangladesh is subject matter to RBI permission. ठीक है, तो अगर कोई NRI आपका पाकिस्तान या बांग्लादेश में अगर वो बिजनेस कर रहा है, so they need a prior approval from RBI. ठीक है. दूसरा, द SNRR अकाउंट कैन नॉट बी हेल्ड मोर देन 7 ईयर. दिस वाज द पॉइंट जो इस बार आपका पूछा गया था. आफ्टर 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, नो ऑपरेशंस आर परमिटेड इन दीज टाइप ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, अंडरस्टूड. आगे बढ़ते हैं. Which of the following factor is the least likely to impact the operational efficiency of the correspondent banking relationships? Now what is correspondent bank? ठीक है, so correspondent bank क्या होते हैं ये समझ में आता है. ठीक है, like what, how they generally work. ठीक है, so let's say there is a bank. Basically what is correspondent bank? ठीक है, तो correspondent banking का जो business है वो कैसे काम करता है. Let's say there is a bank from India. Let's say it is ये है हमारा आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, सो नाउ इट इज लाइक, अब SBI का इट इज नॉट फिजिबल फॉर SBI टू ओपन ब्रांचेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, सो हर एक कंट्री के अंदर आपका ब्रांचेस ओपन करना ये आपका कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन नहीं होता, बिकॉज लाइक लेट्स से वी हैव वेरी लीस्ट कस्टमर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर कंट्रीज, या हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन दीज पर्टिकुलर कंट्रीज. बट द कंसर्न इज दे हैव वेरी लाइक कुछ कस्टमर हैं जो आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं. ठीक है, सो नाउ टू सर्व दीज पर्टिकुलर कस्टमर, ठीक है, दो चांस हमारे पास थे SBI के पास. वन इज कि दे ओपन देयर ब्रांच इन दिस कंट्री A. ठीक है, दूसरा आपका अब A में ओपन क्यों नहीं किया? इफ विल ओपन ब्रांच इट इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट होती है एक ब्रांच के साथ उसके मेंटेनेंस में. ठीक है, सो व्हाट बेसिकली SBI डिड इन दिस पर्टिकुलर केस कि आपका ये जो कंट्री A है यहाँ का एक बैंक है, सपोज दैट ABC बैंक. ठीक है, सो दे मेंटेन वन अकाउंट विद, सो SBI इज मेंटेनिंग वन अकाउंट विद दिस ABC बैंक टू फैसिलिटेट देयर कस्टमर्स फ्रॉम इंडिया. ठीक है, जैसे एक मिस्टर एक्स आपका है, ठीक है, इंडिया का, जिसको कंट्री A के अंदर आपका कोई ट्रांजेक्शन करना है. ठीक है, सो व्हाट SBI विल डू, SBI हेल्प दिस मिस्टर एक्स थ्रू द अकाउंट विद दिस ABC बैंक व्हिच इज जनरली नोन एज नोस्ट्रो अकाउंट. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका नोस्ट्रो अकाउंट. तो नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू हम इसको क्या कर रहे होते हैं, आपका हेल्प कर रहे होते हैं. दिस अकाउंट ऑफ SBI विद ABC बैंक विल बी मैनेज्ड इन द लोकल करेंसी ऑफ दिस कंट्री A. ठीक है, कंट्री A की जो करेंसी है, लेट्स से इट इज कंट्री करेंसी G, तो इसके अंदर आपका ये मेंटेन, मतलब यहाँ की लोकल करेंसी में ये मेंटेन होगा. सिमिलरली वाइस वर्सा कि ABC का जैसे सेम फॉर ABC का ज्यादा बिजनेस है नहीं इंडिया, बट कुछ कस्टमर हैं जो कुछ फ्रीक्वेंसी में ट्रांजेक्शंस करते हैं, सो दे कैन मेंटेन एन अकाउंट विद इंडियन बैंक टू फैसिलिटेट दोज पर्टिकुलर कस्टमर, एंड दैट अकाउंट इज जनरली नोन एज वोस्ट्रो अकाउंट. ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपका वोस्ट्रो अकाउंट के नाम से जानते हैं. ठीक है, एक और अकाउंट होता है आपका लोरो अकाउंट. सो व्हाट इज लोरो अकाउंट? सो लोरो अकाउंट इज लाइक बेसिकली जैसे ये होता है आपका नोस्ट्रो को हम लोग क्या बोलते हैं, आर मनी विद यू. ठीक है, सो आपका नोस्ट्रो अकाउंट इज बेसिकली आर मनी विद यू. ठीक है, आर मनी विद यू. दूसरा आपका वोस्ट्रो अकाउंट इज योर मनी विद अस. ठीक है, तीसरा आपका लोरो अकाउंट, ठीक है, योर लाइक देयर मनी विद देम. ठीक है, तो लेट्स से देयर इज वन अनदर बैंक PNB का, सपोज दैट देयर इज नो ब्रांच इन दिस कंट्री A एंड नो नोस्ट्रो अकाउंट इन दिस पर्टिकुलर कंट्री विद दिस पर्टिकुलर कंट्रीज बैंक. ठीक है, इसका किसी भी बैंक के साथ कोई आपका नोस्ट्रो अकाउंट भी नहीं है या कोई भी करस्पॉन्डेंट बैंकिंग आपका नहीं है. नाउ देयर इज वन कस्टमर ऑफ आपका PNB, एक PNB का एक कस्टमर जिसने अप्रोच किया आपका कि दे वांट टू रेमिट सम मनी इन कंट्री A. तो अब इस केस में व्हाट PNB विल डू, PNB विल टेक हेल्प ऑफ SBI and through this SBI nostro account they'll conduct that particular transaction. So the relation between these two is generally known as loro account. One another account is there that is known as mirror account. Mirror account आपका क्या होता है, basically it is a replica of your nostro account. ठीक है, it is called mirror account. So mirror account आपका generally क्या होगा, it is kind of replica of this. ठीक है, जैसे ये हम आपका इसको foreign currency में maintain कर रहे हैं,
तो इसका जो ट्रांजेक्शन है उनको हम लोग रूपी के अंदर भी आपका सेम तरीके से, तो टू फॉर द रिकनसाइल पर्पस वी जनरली कीप दिस पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर is the least likely to impact the operational efficiency of a correspondent banking relationship? So compliance with international and AML and CFT regulations, they'll definitely have an impact on the correspondent bank. ठीक है. Political stability in the correspondent bank home country, बिल्कुल they have impact. Availability of bilateral credit between the bank, जैसे आपका LC and all जिसमें यूज होता है, yes. Frequency of cross border trade transaction conducted by the individual customer, हाँ ये उतना बड़ा आपका ट्रांजेक्शन नहीं होते, दे आर लाइक ब्रॉडर इंपैक्ट, बट इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा. सो डी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. So while cross-border trade transaction affect the volume of correspondent banking activity, they do not directly impact the operational efficiency, unlike compliance, political stability, and credit arrangement. ठीक है. Next one. An NRI wish to invest in Indian partnership company. Which of the following requirement must be satisfied for the investment to be allowed to the re-imported outside of India? ठीक है. अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन, ठीक है. सो एनआरआई के आपका जो परमिसिबल एरियाज है उनसे रिलेटेड, ठीक है. सो देयर आर सम restricted areas or there are some permissible areas for NRIs. So these are the businesses where you cannot invest, ठीक है, your money, or these are the areas where you can invest the money, ठीक है. पहला, so the firm must not be engaged in agriculture, plantation activity, or real estate business. 100% true. The contribution should be from the balance held in NRE and FCNR deposit account. 100% true. ठीक है. The investment should be in partnership firm engaged. No, this is the just opposite of this. तो ये आपका गलत है. The amount must be invested by way of gift from a person resident outside India. No, this is also wrong. ठीक है. तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट वन, ठीक है. सो ए एंड बी, आपका ए एंड बी है इसमें, हाँ है, ठीक है. तो आपका व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. तो दीज आर सम गाइडलाइंस, ठीक है, जिनको आपको ध्यान रखना है. तो जैसे द फर्म मस्ट नॉट बी एंगेज इन रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एक्टिविटीज फॉर एनआरआई to invest in partnership firm or proprietorship organization. The NRI is not allowed to invest in the company if it is involved in these activities. The donation must come from the NRO NRE. This तो directly नहीं होगा, इन्हीं के account के through होगा. NRE contribution must be originate from the new inbound remittance to India or from balances kept in NRE and FCNRB, foreign currency non-resident bank. Deposit account to invest in a partnership firm or a proprietorship firm concerned. These accounts which NRI manage permit the repatriation of funds, meaning that the NRI can transfer the money back to their foreign accounts subject to a certain conditions. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन गाइस. What drive the uses of correspondent banking services by a foreign bank? So why, like let's say मैंने आपको example दिया कि SBI open that correspondent banking partnership with some ABC bank of country A, ठीक है. तो मोटिव क्या समझा था उसके पीछे का? Now you know the answer, ठीक है. तो बताओ. So to obtain foreign bank branch license, no, there is like हमें ब्रांच तो ओपन करना ही नहीं है, ठीक है. अगर हमें ब्रांच ओपन करना तो फिर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग की क्या जरूरत, हम फिर खुद ही ट्रांजेक्शन को हैंडल करेंगे. टू टेक एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज विदाउट अ ब्रांच नेटवर्क, यस, हाँ बिल्कुल सही. Because we want to serve the customers who are doing remittances in that particular country, but the frequency is very less, but we do not want to miss that less numbers also. Okay, to minimize operational cost, there is no branch, no operation. To conduct business transaction exclusively in their, no, ठीक है. So क्या होगा आपका correct answer? So B will be right answer for this particular one, ठीक है. तो the only motive is like कि हाँ, this is a kind of saving account. जैसे मेरा saving account है, let's say with SBI. So अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन करना है, so I'm using that particular. Similarly, SBI is maintaining one account with that foreign country's bank to do the transactions on behalf of customers. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. In the context of FEMA Act 1999, which of the following define person of Indian origin? ठीक है, so person with Indian origin, ठीक है, किसको हम लोग बोलते हैं आपका, जैसे
हमारे जो दादाजी लोग थे, लेट्स से देयर इज अ पर्सन कॉल मिस्टर ए, उसके दादाजी आपके ब्रिटेन में थे और वहीं की सिटीजनशिप थी नाउ, वहां के लिए उनको, या इंडिया में वो थे आपका, जैसे ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन थे, उनके जो बच्चे हैं दे आर जनरली कॉल्ड आपका पर्सन विद इंडियन ओरिजिन, ठीक है। सो अ पर्सन होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट बट residing outside India for 10 years, 5 years, no. Spouse of Indian origin married to an Indian citizen, हाँ बिल्कुल ऐसा में हो जाएगा, ठीक है। A citizen of India residing abroad, नहीं, NRI होगा। A citizen of Bangladesh और पाकिस्तान with Indian ancestry, no। तो क्या होना चाहिए, बी आपका आंसर होना चाहिए, yes, हाँ। So person of Indian origin include a spouse of Indian origin married to an Indian citizen but exclude citizenship of Bangladesh, exclude the citizenship of Pakistan and Bangladesh, ठीक है। Next one, consider an NRI who hold an NRO account and receive income in NRE from rental property in India. Which of the following tax implication apply under Indian regulation? तो क्या होता है आपका TDS आपका 30% के अराउंड लगता है, ठीक है। हाँ, so TDS is applicable at 30%. Income is fully exempted, no. TDS आपका is applicable at a flat rate of 30%. Income is subject to progressive slab, no. इनके लिए नहीं होता वो, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्लैब इज लाइक जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो उतना ज्यादा टैक्स आपको पे करना होता है। जैसे नॉर्मल हमारा टैक्स स्लैब होता है ना कि लाइक इफ योर अर्निंग इज लाइक लेट्स से 5 लाख तो आपकी टैक्स लायबिलिटी अलग होगी, अगर किसी की 50 लाख है तो उसकी अलग होगी। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स इज कैलकुलेटेड ओनली इफ एनआरआई अर्न मोर देन 15 लाख, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। इनकम इन एनआरओ अकाउंट is subject to TDS at a flat rate of 30% as it represent income earned within India by NRI. Progressive slab rate are not applicable to NRI unless explicitly specified, ठीक है, कंडीशंस के साथ जो आपका रहते हैं। तो बेसिकली आपका जो एक बेसिक कैलकुलेशन जो इनके लिए आपका रखी गई, ठीक है। नेक्स्ट वन, an NRI investor wish to make high value repatriable investment in Indian securities. Which combination of account and instrument would ensure compliances with FEMA regulation? ठीक है, तो कोई NRI आपका है जो इंडियन सिक्योरिटीज में आपका इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, आपका शेयर्स या आपका जो बॉन्ड्स हैं या अदर्स उनमें, ठीक है। सो यूज एन एनआरओ अकाउंट टू इन्वेस्ट। देखो एनआरओ अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले तो उसका जो इन्वेस्टमेंट का रूट होगा वो क्या होगा, एनआरई एंड एफसीएनआर, ठीक है, एफसीएनआर, इनके थ्रू वो आपका इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। अकाउंट टू इन्वेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन दिस, नो। यूज एन, देखो उसने क्या लिखा था, हाई वैल्यू रीपैट्रिएबल, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपका आपको जो आंसर करने में, ठीक है। एनआरओ इज लाइक सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो अभी हमने पास्ट में डिस्कस किया, यूज an NRE account to invest in shares under the portfolio investment scheme, they can, ठीक है, कर सकते हैं। use an FCNR account to invest in agriculture properties, not allowed, ठीक है। use in SNRR account to trade in intraday derivatives, no, it is also not allowed, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, so NRI can use NRE account to make a repatriable investment in Indian securities under the portfolio investment schemes. Other options are आपका restricted, ठीक है। नेक्स्ट वन, under FEMA which scenario would classify an individual as resident non-ordinary resident, ठीक है, तो आपका RNOR, ठीक है। सो रेजिडेंट बट नॉट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, हमने इनके डेफिनेशंस आपका बहुत बार पढ़ी और एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, वो आपका जैसे क्या होता है ना, इनकम टैक्स के हिसाब से है या फिर आपका फेमा के हिसाब से, दो चीजें जो आपका रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में आपका जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो one question you can expect based on this particular one, guys, ठीक है। so RNOR resident but not ordinary resident, ठीक है। so क्या होता है आपका जनरली 730 days, क्या है, an individual which scenario would classify an individual as a resident but not stayed outside for less than 7 years continuously, no, stayed in India less than India, आउटसाइड इंडिया था, ये आपका इंडिया है, तो हम उसको RNOR में ला रहे हैं तो ये तो वैसे ही आपका हट जाएगा, ठीक है। सो स्टेड इन इंडिया फॉर लेस देन 730 डेज in last 7 financial year, this is true. Stayed in India for more than 5 years but earn no income, no. Stayed outside India for employment for, no, ठीक है। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, सो हमारा राइट आंसर होगा
classification apply to those who have stayed in India for less than 730 days in last 7 years. ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे आपके पॉइंटर्स होते हैं, उनमें से एक पॉइंट आपका जो ये था, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट. ठीक है, तो नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अभी मैंने आपको समझाया तीनों को, ठीक है, याद होगा. ठीक है, सो नोस्ट्रो इज आर मनी विद यू, ठीक है, वोस्ट्रो इज योर मनी विद अस, ठीक है, और लोरो इज देयर मनी विद देम. ठीक है, ऐसे एक मिरर अकाउंट होता है जो नोस्ट्रो अकाउंट का रेप्लिका हमारा होता है. ठीक है, सो नोस्ट्रो अकाउंट आर मेंटेन इन फॉरेन करेंसी बाय द फॉरेन बैंक for Indian bank. Vostro account are maintained in INR by foreign bank for Indian bank. ठीक है, लोरो अकाउंट इन्वॉल्व फंड, मतलब दोनों ही गलत हैं, लास्ट पॉइंट इनके जो है. ठीक है, लोरो अकाउंट इन्वॉल्व फंड रेमिटेंस बाय वन बैंक टू अनदर फॉर द अकाउंट ऑफ थर्ड बैंक. बिल्कुल सही है. ठीक है, देयर मनी विद देम. ठीक है, SBI टू दैट ABC bank of that country A and PNB is using that particular account. This is the scenario. ठीक है, Nostro account are held in local currency by domestic bank in foreign countries. No. ठीक है, Nostro account SBI ओपन किया था बैंक ABC के साथ इन देयर लोकल करेंसी ऑफ कंट्री ए. ठीक है, तो वो एग्जांपल्स आपको याद रखेंगे तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, सो लोरो अकाउंट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन वेयर अ बैंक रेमिट फंड्स in foreign currency to another bank for the credit of the third bank account. ठीक है, through their Nostro account. ठीक है, which of the following NRI account combination of facilities are repatriation of both principal and interest. ठीक है, कौन से ऐसे अकाउंट होते हैं जहां पे repatriation is allowed to the NRIs. तो क्या होगा आपका सिंपली आंसर NRE एंड FCNR अकाउंट. ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा NRE एंड FCNR. ठीक है, तो NRE तो होता है बट NRO नहीं होता है. ठीक है, SNRR आपका जिसमें कंडीशंस आपकी रहती हैं. ठीक है, देन आपका NRO, SNRR नहीं. ठीक है, तो आपका ए होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, सो NRE एंड FCNR अलाउ repatriation of principal and interest where NRO accounts restrict the repatriation of funds except in some specific cases. ठीक है, next one. Which of the following best describe the risk exposure associated with maintaining Nostro and Vostro account in correspondent banking? ठीक है, so best describe the risk exposure associated with Nostro and Vostro account in correspondent banking. ठीक है, तो liquidity risk due to delay in cross border fund settlement पहले ही सही है. ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क ड्यू टू कंप्लायंसेस लैप्स इन आपका AML CFT रेगुलेशन दूसरा भी सही है. ठीक है, अच्छा ओके, हाँ, करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क मेंटेनिंग बैलेंसेस इन फॉरेन करेंसी, तो क्या है आपका ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट, सो दीज टाइप ऑफ रिस्क commonly bank they generally face in their, like while they generally maintain Nostro and Vostro account with different banks across the world. So Nostro and Vostro accounts are exposed to multiple risk including liquidity risk, आपका operational risk, KYC AML related, countering the financing of terrorism CFT AML, regulation and currency fluctuation risk due to holding balances in foreign currencies. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. An NRI plan to open FCNR account in euros. ठीक है, FCNR is equal to FD. आप इसको इस तरीके से याद रखो. ठीक है, मतलब जैसे कोई NRI है वो आपका एक FD अकाउंट ओपन कर रहा है आपके बैंक के साथ. ठीक है, एंड इट इज जनरली मेंटेन इन फॉरेन करेंसी. ठीक है, जैसे NRE एंड NRO आर जनरली मेंटेन इन और इवन SNRR अकाउंट इज मेंटेन इन रुपी, बट दिस इज द अकाउंट विच गेट मेंटेन इन फॉरेन करेंसी. तो ये जो आपका NRI है वो आपका FD ओपन करना चाह रहा है किसमें, आपका यूरो में. ठीक है, with a tenure of 5 years, 5 साल के लिए आपका. ठीक है, if the Reserve Bank of India tighten monetary policy during this period, what would be the most likely impact on the account interest rate? अब तो क्या होगा, अगर जैसे मैंने सिंपल सा समझो, अगर मैंने आपके बैंक के साथ FD खोला 5 साल के लिए और आपने बोला सर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज फिक्स. ठीक है, सो सिमिलर टू दिस देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो रेट है आपका वन टाइम आपका कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है बैंक एंड द अदर पार्टी के बीच में. ठीक है, सो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज ड्यू टू टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी. नो, the interest rate will remain unchanged as FCNR account are not linked to the Indian monetary policy. This can be
The interest rate will be decreased, no. The interest rate will be adjusted, no. ठीक है, तो क्या होगा आपका, there will be no impact. ठीक है, जैसे एफडी में होता है वैसे यहाँ पे भी. So FCNR account held in foreign currencies and their interest rate are influenced by the interest rate environment of the respective foreign currency, not the Indian. अगर इस लॉजिक के साथ भी आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. An NRI or non-resident Indian or person of Indian origin can purchase share up to dash of a paid up capital of Indian company. तो कितना आपका 5%, ठीक है. As an individual 5%, as a group of POIs and NRI it is 10%, ठीक है. तो हमें इंडिविजुअल आपका पूछा है, तो what will be our correct answer, 5%, ठीक है. NRI or PIO can purchase share up to 5% of the paid up capital of Indian company. All NRIs and PIOs taken together cannot purchase more than 10%, ठीक है. तो ये दोनों ही चीजें आप याद रखिएगा, कई बार ये एप्लीकेशन में भी रहता है. आई विल इवन कम अप विद वन एप्लीकेशन और केस स्टडी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन, तो जिससे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है. Which of the following transaction is prohibited for NRI under FEMA regulation? बताओ क्या होगा आंसर. Investment in mutual fund, no, it is not prohibited. Purchasing agricultural land, they cannot purchase, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए. Investing in listed company allowed. Buying a residential property allowed, ठीक है. तो क्या होगा आंसर आपका, purchasing agricultural land or plantation, that is not allowed as per the आपका FEMA regulation, ठीक है. Which of the following is not a function of correspondent bank, ठीक है. तो correspondent bank आपका क्या करती है, facilitate in wire transfer, it is ऑपरेट ओपनिंग, हाँ सेविंग अकाउंट नहीं होता है यहाँ पे डायरेक्टली बेसिकली. करेंसी एक्सचेंज, चेक क्लियरिंग, ठीक है, चेक क्लियरिंग सर्विसेज. तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. सो ओपनिंग सेविंग अकाउंट इज नॉट अलाउड, ठीक है, सेविंग अकाउंट के लिए डील नहीं करते वो लोग. चलो आगे बढ़ते हैं. An NRI earned a rental income of 20 lakh in India and has an outstanding home loan interest of 5 lakh for the same property. Under which condition can NRI claim the deduction and what will be the taxable amount in their NRO account, ठीक है. तो देखो बहुत सिंपल है, जितना रेंट आपका इंटरेस्ट उसने पे किया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है. सो 20 लाख आपका माइनस इंटरेस्ट आपका 5 lakh, ठीक है. सो 15 lakh will be taxable, this amount will be taxable and this amount will get exempted, ठीक है. So deduction can only be claimed for property loans secured from the Indian bank. Taxable income will be 15 lakh. Deduction for 5 lakh can be claimed under section 24 subsection B, reducing taxable income to 13 lakh. तो sorry 50 lakh, 15 lakh sorry, ठीक है. तो B, no deduction are allowed. A flat of 30% tax applicable, no. तो deduction is allowed in case of this section 24 subsection B आपका जो उनको यहाँ पे help करेगा, ठीक है. So NRI can claim deduction under section 24 subsection B for interest paid on loan for property, reducing the taxable income to 15 lakhs. Next one, which of the following is not an example of account under correspondent banking? अब ये तो बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है. तो क्या होगा आपका, these are the example, this is not. इस बार क्या होता है, application supported by blocked amount, it is generally this is an application form for IPO, FPO and NFO, ठीक है. तो जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो वी जनरली इन्वेस्ट थ्रू दी एसबीआई एप्लीकेशन, ठीक है. सो द अकाउंट हेल्ड बिटवीन करस्पॉन्डेंट बैंक्स एंड द बैंक टू विच दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रेफर टू आपका रेफर्ड एज नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड आपका लोरो अकाउंट. मेजरली टू अकाउंट, नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो, ठीक है. डोमेस्टिक बैंक कैन सर्व देयर इंटरनेशनल क्लाइंट एंड gain access to foreign financial market by using correspondent bank rather than setting up branch overseas, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना. So international trade is usually important in today's world. Nearly every single corporation or person has global expansion aspirations for their operation, but this is not feasible without banking facilities. Similarly, it is impractical for each bank to establish a branch एवरीवेयर. रीजन बीइंग, एक ब्रांच हम ओपन करते हैं तो कॉस्ट बहुत होता है. आप लोग तो ब्रांच मैनेजर हैं मैक्सिमम लोग, ठीक है, तो आप जानते हैं कितना कॉस्ट होता है एक ब्रांच के अंदर, ठीक है. सो तो हमने क्या किया,
हमने कहा यार अब खुद का ब्रांच नहीं बल्कि करस्पॉन्डेंट के थ्रू आपका, तो जहां पे इवेंचुअली हमें यही सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो हमें जो करस्पॉन्डेंट बैंक है दे विल प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हुआ, ऑटो करेक्ट, ठीक है। चलो, तो हमारे पास तीन टाइप के अकाउंट होते हैं, नोस टू अकाउंट, आर मनी विद यू, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हु ओपन वन अकाउंट विद आपका एबीसी बैंक ऑफ कंट्री ए, दिस इज कंट्री आपका, ठीक है। तो एक इंडियन बैंक आपका एसबीआई, जिसने क्या किया, आपका एसबीआई एबीसी बैंक जो आपका है कहाँ का, कंट्री ए का, वहां की लोकल करेंसी में, ठीक है, करेंसी वाज सपोज दैट जी, ठीक है। तो ये दिस अकाउंट विल बी मेंटेन इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसके कस्टमर है इनके थ्रू। दूसरा आपका वोस्ट्रो अकाउंट, इट्स अ रिवर्स केस, ठीक है। लेट्स से एबीसी मेंटेनिंग वन अकाउंट विद एसबीआई इन रुपी इटसेल्फ, ठीक है। सो रुपी अकाउंट आपका होगा ये आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट में होगा, वहां की लोकल करेंसी में जहां पे भी अकाउंट है, ठीक है। सो दिस एबीसी इज फैसिलिटेटिंग देयर होम कस्टमर्स विद एसबीआई ब्रांच और दिस अकाउंट दैट इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट। लोरो अकाउंट इज लाइक, लेट्स से जैसे हमने एग्जांपल लिया था पीएनबी, उसका नोस्ट्रो अकाउंट नहीं है, सो दे आर जनरली टेकिंग हेल्प ऑफ एसबीआई टू फैसिलिटेट देयर कस्टमर इन कंट्री ए आपका, ठीक है। सो विद और विद द हेल्प ऑफ एबीसी बैंक, अंडरस्टूड। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है कॉन्सेप्ट के अंदर, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ के आओगे बिल्कुल भी चैलेंज नहीं होगा, ठीक है। दिस इज आपका जो डेफिनेशन है, रिविजन कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अ फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन बाय अ बैंक in the home country with the bank in the host country is known as, तो हम इसको क्या बोलेंगे आपका नोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। दूसरा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी रेजिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया। तो देखो ये जो आपका रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट है ना, इसके ऊपर दो एक्ट काम करते हैं, वन इज फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ओवरऑल आपका। दूसरी तरफ आपका इनकम पर्पस के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल 1962, जिनके अकॉर्डिंग आपका रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट आपका डिसाइड होता है, और काफी डिटेल में हमने इनको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, हमें इंडियन होने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो या तो हम इंडिया में ही रह रहे हैं तो हम रेजिडेंट हैं। दूसरा आपका इफ एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया, जैसे हमारा पहला, और at least 182 days in the preceding financial year. Preceding financial year means जैसे अभी आपका चला 24-25, तो आपका 23-24, ठीक है, बिल्कुल सही है। If an individual is in India for at least 365 days day in last 4 financial year, ठीक है। तो ये कैसे होगा आपका, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है, पहला आपका 22-23, दूसरा आपका 21-22, तीसरा, और आपका चौथा 2021, ठीक है। दीज आर द प्रीसीडिंग 4 इयर्स, इनमें अगर वो आपका 365 डेज इंडिया में है तो भी वो आपका रेजिडेंट होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या था हमारा, बी रेजिडेंट, तो क्या होगा, या तो आप इसको सेटिस्फाइड करो, ठीक है, या तो आप इंडिया में रह रहे हो जैसे हम लोग हैं, या फिर आपका ये, ठीक है। तो क्या होगा आपका इधर ए, हाँ देखो यहाँ पे ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, अगर ऐसे ऑप्शन भी मिल गए तो भी कई बार हम जल्दीबाजी में बोथ ए एंड बी लिख देंगे, बोथ का जरूरत नहीं है, या तो ये, ठीक है, कोई भी चलेगा। सो ईदर ए और बी, ठीक है। तो दिस इज आपका बी शुड बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What distinguish an SNRR account from the other NRI account, ठीक है। तो SNRR अकाउंट का मोटिव क्या है, इट इज द बिजनेस पर्पस, ठीक है। हम इसको बिजनेस पर्पस के लिए आपका कि उस एनआरआई का कुछ बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर, तो उस बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है वो आपका फेयर तरीके से हो या दस उसके लिए, ठीक है। दूसरा रेमिटेंसेस, लाइक दैट एनआरआई कैन रेमिट मनी इन SNRR अकाउंट थ्रू योर NRO and NRE and FCNR account, not through NRO account, ध्यान रखिएगा। अब NRE and FCNR के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट आया है, सो इट इज रिपेट्रिएशन, ठीक है। इट कैन बी repatriate to their country। अब एक और चेंज क्या है, इन केस ऑफ NRE and FCNR taxes are generally paid in the country where he is living right now, जैसे हमारा एक्स कहां पे रह रहा था, यूएस में। बट इन केस ऑफ SNRR अकाउंट टैक्सेस आर जनरली पेड इन इंडिया इटसेल्फ, जो वो बिजनेस एक्टिविटीज हो रहा है उसमें इंडिया में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द वन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इट अलाउ ओनली INR डिपॉजिट व्हाइल अदर एक्सेप्ट फॉरेन करेंसीज एंड नॉट, ऐसा नहीं है। इट्स बैलेंस आर
ineligible for repatriation, no, it is eligible. It is designated for business related rupee transaction, not an individual saving. uh, it can be converted to NRO account after 7 years, no. अब इसमें question, it is designated it is designed for business related rupee transaction, not for individual saving. So इसके हिसाब से C should be right answer for this one. बिल्कुल सही, ठीक है. So SNRR account cater to business transaction in rupee and cannot be held for more than 7 year. हमने पढ़ा था जैसे आपका, ठीक है. So this is the one, ठीक है. Next one, which account type is meant for business with rupee transaction? तो ये तो आपका क्लियर है, SNRR account, ठीक है. अभी हमने इसको डिस्कस किया. Next one, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेंटेनिंग और रुपी अकाउंट विद एचडीएफसी. तो क्या हो जाएगा, वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा. बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, देयर मनी विद अस, ठीक है, देयर मनी विद अस, तो दैट इज वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है. रुपी अकाउंट आपका है. चलो आगे बढ़ते हैं. नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर हमने डिटेल में डिस्कस किया. नहीं, एनआरई, sorry, a non-resident Indian can purchase each of the following on repatriation basis except, ठीक है. तो अगर आप एज ए एनआरआई, अगर आप इंडिया में कोई चीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे रिपेट्रिएशन अलाउ है, बट कुछ एरियाज में आपका नहीं है जो आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते. जैसे यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ठीक है, इट इज अलाउड, ठीक है. शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बीइंग डिसइन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, बॉन्ड इश्यूड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, आपका dated government securities, treasury bills and domestic unit of domestic mutual fund, ठीक है. Bonds issued by public sector bank, share of public sector enterprise being disinvested by the government of India, unit of mutual fund, bonds issued by public sector bank undertaking, ठीक है. Public sector undertakings, dated government securities, treasury bills, unit of domestic. So आपका D या एच, ओके, यूनिट ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ओके, आई हैव टू चेक दिस पर्टिकुलर वन. हाँ, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है. सो ऑन रीपेट्रिएशन, अच्छा, ओके ओके, नाउ आई गॉट द क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है. इट इज, वी मिस दिस पॉइंट, ठीक है. रीपेट्रिएशन बेसिस पे आपका ये था, ठीक है, ऑन रीपेट्रिएशन बेसिस आपका, ठीक है, तो इसलिए आपका ये है, ठीक है. प्लीज ध्यान रखिएगा इसको, दिस चार्ट विल हेल्प यू आउट. ऑन रीपेट्रिएशन बेसिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब ये सारे ही एरियाज अलाउड हैं, बट रीपेट्रिएशन एंड नॉन रीपेट्रिएशन, ठीक है. तो आपका जैसे ऑन रीपेट्रिएशन बेसिस, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, यूनिट ऑफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, बॉन्ड इश्यूड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, शेयर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, आपका डिसइन्वेस्टमेंट नॉट, ठीक है. ऑन नॉन रीपेट्रिएशन बेसिस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, ठीक है. सो आपका यूनिट ऑफ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ठीक है. तो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है, जहां से हमारा था नेशनल प्लान और सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन गाइस, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज विद दिस पर्टिकुलर वन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जैसे मैं हुआ वैसे आप भी हो सकते हैं, तो मैं चाहता नहीं कि आप वैसे हो, ठीक है. आप इसको ध्यान रखें, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर प्रोहिबिटेड फॉर एनआरआई? प्रोहिबिटेड, ठीक है, नॉट अलाउड, ठीक है. बताओ. परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, प्रोहिबिटेड. इंट्राडे ट्रेडिंग, प्रोहिबिटेड. ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ट्रेड्स आपका, ठीक है, जो आपके प्रॉपर्टीज या अदर्स इनसे रिलेटेड, अगेन प्रोहिबिटेड. सो ऑल विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन. ओके, ये पिछले क्वेश्चन का ही वो आ गया, ठीक है. तो गलती करी थी तो इसलिए दोबारा आ गया है. ये कह रहा है कि अटेंशन, ये साइन दे रहा है, ध्यान रख लेना इसका कि आने वाले एग्जाम में आपको मिलने वाला है, ठीक है. चलो, which feature of an FCNR account differentiated from the NRE account? FCNR account, it is maintained in foreign currency. ये FD की तरह आपका foreign currency, otherwise आपका NRE आपका रुपये अकाउंट है, ठीक है, इस तरीके से. So FCNR account allow deposit in foreign currency, बिल्कुल. Interest earned on FCNR account is taxable in India? No. In both the cases, taxes जहां पे वो आपका है, ठीक है, द कंट्री द एनआरआई बिलोंग्स, दे हैव टू पे टैक्सेस देयर बिकॉज दे हैव अर्नड दिस पर्टिकुलर मनी फ्रॉम देयर दैट कंट्री. FCNR account cannot be repatriated. It can be. FCNR account are restricted to NRI employed in Gulf countries. नहीं, ऐसा कोई गल्फ कंट्री के साथ वी हैव गुड रिलेशन, ठीक है. सो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? A will be right answer for this particular one. आसानी से था, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है. What is the primary difference between CHIPS and SWIFT in correspondent banking? Now, जो international transfers होते हैं, in that particular case, we have service providers, ठीक है. जैसे the one of the largest or we can say biggest network
which generally owned by SWIFT आपका, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT आपका, ठीक है. That is a kind of it generally work as a cooperative society, ठीक है. ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज के इसके जो मेंबर नेशंस हैं, ठीक है. बेसिकली दिस चिप्स इज बेसिकली इट इज फ्रॉम यूएस. ये आपका यूएस का क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर की तरफ. इट इज अ कंपनी फ्रॉम यूएस. इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एट वर्ल्ड वाइड, ठीक है. इसका जो कस्टमर बेस है दैट इज ह्यूज, और दे जनरली फैसिलिटेट सेफ एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्जर ट्रांजेक्शन. बट दिस इज अ कॉर्पोरेट ओरिएंटेड, ठीक है. जो चिप्स है आपका, ये जनरली आपका जो मेजर ट्रांजेक्शन, जो बल्क ट्रांजेक्शन है उनको हैंडल करने में आपका मदद करता है. जैसे चिप्स है आपका, यूके से चाप्स है, यूएस से एक और है आपका फेडवायर. सो दीज आर द काइंड ऑफ, जैसे कंपनी है ये, दीज आर जनरली वर्किंग एज अ कंपनी एंड दैट इज वर्किंग एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है. सो स्विफ्ट प्रोसेस हाई वैल्यू पेमेंट एक्सक्लूसिवली व्हाइल चाप्स हैंडल रिटेल. नो, स्विफ्ट facilitates secure financial messaging while chaps handle the clearing and settlement. हाँ बिल्कुल ये हो सकता है. Chips enable real-time payments while Swift follow the net the हाँ नहीं, Swift and chips are identical of functionality, differentiating only in geographical uses. नहीं, ठीक है. तो क्या था हमें आपका, हमें क्या ढूंढना था, डिफरेंसेस, ठीक है. सो बी और सी में से एक होना चाहिए. हम लिटिल बिट ओके. सो द स्विफ्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इज ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिटेल्स सिक्योरली. चिप्स फोकस ऑन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ हाई वैल्यू पेमेंट. ये एक्चुअली ना क्वेश्चन थोड़ा सा आधा है, ठीक है. यहाँ पे आगे ये भी होना चाहिए था, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस, ठीक है, इस तरीके से आपका, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड विद दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो दिस इज द वन. Which of the following services are provided by Swift? तो Swift क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? मैसेज सोल्यूशन फॉर बैंकिंग एंड पेमेंट्स, ट्रेड फाइनेंस मैसेजिंग, ठीक है, आपका फॉरेक्स एंड ट्रेजरी रिलेटेड मैसेजेस, ठीक है. ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर. अब जब हम लोग आएंगे ना किसमें, व्हेन विल स्टडी द आपका डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट नेक्स्ट यूनिट, तो वहां पे स्विफ्ट का रोल आपको फिर से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. So Swift basically provide these particular facilities, very important guys, again, ठीक है, for 1 marks and half marks. Banking and payment related messaging system or solution, trade finance related messaging solution, ठीक है, securities related and forex trade and treasury related messaging. तो जैसे आपका जैसे होता है ना ट्रांजेक्शंस आपके होता है, let's say when we do some transaction within country, ठीक है, we got one message कि आपका your account has been credited and debited. तो same things आपका जो वेरिफिकेशन करना और आपका जो मैसेजिंग डिलीवर करना, दैट इज लाइक बिल्डिंग अ कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट बैंक्स और टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन एंड टू डिलीवर द मैसेज. तो ये आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें होती है दैट इज हैंडल्ड बाय स्विफ्ट, ठीक है. सो अब यहाँ पे एक जैसे हमारे पास IFSC कोड होता है ना, वैसे ही वी हैव वन BIC नंबर, ठीक है, बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड इसको हम लोग आपका बोलते हैं, ठीक है, विच इज यूजुअली 8 और 11 डिजिट कोड, ठीक है. तो कुछ मतलब 8 आर कंपलसरी, 3 आर आपका क्या होता है जो ऑप्शनल है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका 4 बैंक नेम, ठीक है, देन वी हैव कंट्री कोड, सिटी कोड एंड ब्रांच कोड आपका विच इज काइंड ऑफ ऑप्शनल, ठीक है. जैसे फर्स्ट 4 डिजिट आपका बैंक, जैसे इफ इट इज SBIN, ठीक है, इट इज SBI, ठीक है. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया किसका, आपका यूनिक्रेडिट बैंक का, सो UNCR, ठीक है. नेक्स्ट 2 कैरेक्टर कंट्री कोड, जैसे इन केस ऑफ इंडिया IN एंड दिस बैंक इज फ्रॉम इटली, तो IT आपका है, ठीक है. नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स किस आपका लोकल सिटी, जैसे मुंबई है तो आपका MM हो गया, ठीक है, तो दिस इज द वन. फाइन, लास्ट 3 आपका ऑप्शनल, बट ऑर्गेनाइजेशन यूज देम टू असाइन दी ब्रांच कोड आपका, ठीक है. तो ब्रांच कोड आपका 1 2 3 ऐसा जो भी आपका है, ठीक है. तो इस तरीके से जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है आपका साउथ इंडियन बैंक का, मैंने आप वहां पे भी डिस्कस किया था. तो इस तरीके से आपको कोडिंग जो देखने के लिए मिलेगा, तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्विफ्ट, what does 7th and 8th characters of the BIC represent? बताओ जरा, याद है? तो फर्स्ट 4, देन आपका 2, ठीक है, फर्स्ट 4 बैंक नेम, 2 आपका जैसे हमने पढ़ा था SBIN, ठीक है, देन आपका इंडिया IN, देन आपका जो अगले 2 थे 7, यहां तक कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है, ठीक है, यहां तक आपका SBIN, ठीक है, ये 6 आपके हो गए. अब हमारे जो तो अगले कोड थे वो क्या थे आपका सिटी कोड, जैसे मुंबई,
तो इट रिप्रेजेंट टू सिटी कोड, ठीक है। तो क्या होगा, कंट्री कोड नो, इट इज आपका कंट्री कोड में कौन आएगा, 5 to 6 आपका, ठीक है। कंट्री कोड 1 to 4 आपका ब्रांच कोड, ठीक है। सिटी और लोकेशन कोड यस, बैंक स्पेसिफिक ऑपरेशनल कोड यूनिक एड नहीं, तो क्या होगा आपका आंसर बी, ठीक है। तो ये आईएफएससी में आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, वैसे यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखिए। स्विफ्ट ट्रांजेक्शन ऑफ मैसेज व्हेन कोड इज MTR202, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसका है, ठीक है। सो व्हाट डज दिस कोड सिग्निफाई एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम MT103, ठीक है। सो MT202 इज यूज्ड इन सेटलमेंट से रिलेटेड है इसमें कुछ, हाँ। सो आई विल गो विद दिस, आई एम नॉट श्योर बट जितना मुझे याद आ रहा है इट इज रिलेटेड टू सेटलमेंट एंड इट इज रिलेटेड टू इंटर बैंक फंड ट्रांसफर, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। नो नो नो, गलत है आपका, ठीक है, सॉरी गाइस। सो आई विल इरेज दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो क्या है आपका करेक्ट आंसर, सो M202 इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर, 103 इज आपका कस्टमर पेमेंट, सॉरी, ठीक है। तो आपका सी जो ए आपका लिखा है, सो फॉर्मेट यूज फॉर इंटर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर, ठीक है। सो MTR202 ये हम कोड ना कहाँ पे यूज करते हैं, जब इंटरनेशनल रेमिटेंसेस, इसलिए मैंने आपको बोला ये एलसी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें आपको देखेगा 103 is used for customer credit transfer payments and all, ठीक है। चलो, in case of Swift transfer, how does the inclusion of the optional 9th and 11th character in the BIC code differ from the transaction, ठीक है। तो ये 9th and 11th किसके लिए था आपका, ऑप्शनल है, सिटी कोड के लिए यूज होता है। इट इनेबल रूटिंग ऑफ फंड थ्रू द इंटरमीडिएट बैंक, it identify the specific branch of the institution for the specific fund, it add unique transaction code anti fraud, it use for करेंसी स्पेसिफिक सिचुएशन हो। तो बी और सी में से एक होना चाहिए, यस हाँ। तो बी आपका 9th and 11th कैरेक्टर BIC ऑप्शनल एंड आर यूज्ड टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द बैंक इंश्योरिंग द प्रिसाइज रूट ऑफ फंड, मींस दैट सिटी एंड ऑल, सॉरी जो ब्रांच आपका कोड है उसके लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो हमने क्या बोला था, लाइक फर्स्ट फोर क्या है, बैंक, जैसे SBIN, ठीक है। देन 2 आपका कंट्री कोड IN, ठीक है। देन आपका सिटी कोड आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 कितने हो गए, 6 to 8 आपका 2 इज आपका सिटी कोड, जैसे MM, ठीक है। देन जो लास्ट आपके 3 है दैट इज आपका ऑप्शनल और आपका रिप्रेजेंट टू सिटी कोड, जैसे मुंबई का सिटी कोड इज सपोज दैट 111, ठीक है। तो दिस इज द वन, ठीक है। सो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। चाप्स इज अ पेमेंट सिस्टम यूज्ड बाय, तो चाप्स कहाँ का है आपका, यूके का, चिप्स आपका यूएस का है, चाप्स इज फ्रॉम यूके, ठीक है। सो चाप्स क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम इज अ ब्रिटिश इक्विवेलेंट ऑफ चिप्स processing receipt and payments in the London clearing and settlement. This system operate on the same principle of chips, utilizing the net payment settlement method. So this is next चाप्स आपका क्लियरिंग हाउस, ठीक है। तो ये बेसिक हिस्ट्री है जो हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ चाप्स इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्लियरिंग स्मॉल वैल्यू नहीं, मैनेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, प्रोसेसिंग इंट्राडे नहीं, ठीक है। सो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका जो, और बल्क ट्रांजेक्शन के लिए we generally use chaps, or companies they generally use this particular system for the bulk transaction, ठीक है। तो स्विफ्ट आपका वो मतलब सबका है, ऐसा ही छोटे बड़े सारे ट्रांजेक्शन के लिए चिप्स और चाप्स और इवन फेडवायर ऑल्सो, ये सब आपके जो छोटे ट्रांजेक्शन है उनको भी हैंडल करते हैं, बड़े ट्रांजेक्शन को आपका ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे इररिवोकेबल एक्टिविटीज में आपका हैंडल करते हैं। ओके, सो दिस इज इट गाइस। तो ये हमारा पूरा सेशन जहां पे हमने सारे ही सब टॉपिक्स को आपका डिस्कस किया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी डाउट रहता है, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, सो यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। You can ask your n number queries, or if you need any kind of support from my side, just feel free to ask, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते जाइए, बहुत जल्दी आपका टाइम बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन वन सब्जेक्ट, सो सून वी विल स्टार्ट विद द ABM ऑल्सो, तो वो आपका बर्डन बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपका BFM ऑल कॉन्सेप्ट आर डन, BRBL ऑल कॉन्सेप्ट आर डन, ठीक है।
ABM आपका मॉड्यूल ए इज डन, ठीक है। अब मॉड्यूल ABM के 3 मॉड्यूल और आपका ABFM के यूनिट वाइज MCQs आर ऑलरेडी डन, बट कॉन्सेप्ट वीडियोस विल बी देयर, ठीक है। तो ये हम आपको आपका धीरे धीरे पोस्ट करते जाएंगे, बट यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। तो अभी आपका अभी से बढ़िया से तैयारी करके चलोगे, जितना मैं आपको दे रहा हूँ ना उस शेड्यूल के हिसाब से भी आप लेके चलेंगे, बिलीव मी गाइज, आप परेशान नहीं होंगे एग्जाम ड्यूरेशन के अंदर। थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करके जाइए, ठीक है। मतलब CIB का कोर्स देख के ऐसा लगता है कि यार इतना सब कुछ है, कैसे होगा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ना, एक छोटे से टारगेट के साथ, दैट होता है ना कि आपका स्मॉल गोल, ठीक है, दैट बिगर गोल इज डिवाइडेड अमंग द स्मॉलर गोल, ठीक है। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, छोटे छोटे आपका उनको कंप्लीट करते आते हैं, एक सब्जेक्ट पूरा होगा, आपका सक्सेस पार्टी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। दैट 1 मंथ इज जनरली फॉर आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन वाला होगा ओनली फॉर रिविजन, ठीक है। इस तरीके से लेके चलेंगे तो बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे और बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे आने वाले एग्जाम में। हमारा लक्ष्य यह है कि एक सिंगल अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करना, सिंगल अटेम्प्ट में, क्योंकि वो 45 वाला अगर कहीं पर कुछ कमी पेशी हो जाती है, अगर 45 आता है, दूसरे में 65 लेके आएंगे, 55 लेके आएंगे, उसको पूरा करेंगे, बट एक सिंगल अटेम्प्ट के अंदर हमें क्लियर करना है, ठीक है। हमें मतलब यहाँ पे PhD नहीं करनी है, हमें जितना रिक्वायर्ड है वो करना है, और उसके लिए हम आपके लिए पूरा मतलब हर तरीके से आपका अपनी पूरी जान लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, वो जरूर शेयर करें। आप टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, अगर आपको बात करनी है तो उसके लिए भी मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कीजिए, कुछ भी अगर ज्यादा ही अर्जेंट है, तो हम लोग बात करके उसको आपका कैसे आगे बढ़ना है वो आपका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नाउ आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम विद केस स्टडीज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट और आपका केस स्टडीज में कई बार क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अगर आपका केस न्यूमेरिकल से अदर्स ऐसी चीजें आपका नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इट from my side. Thank you for joining this session, thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day, and please do share your feedback on this particular video, कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। So bye bye, take care all, thank you.